चैप्टर को बंद करेंगे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए 12th में है और सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए है। हम उम्मीद करते हैं कि आप मैक्सिमम लोग सीबीएसई के बिहार बोर्ड के लिए बिहार बोर्ड से तो याद रखना कि लोग ना मंडे वेडनेसडे फ्राइडे इस दिन है आपका। फ्राइडे को तो खैर दोनों ही दिन है, कैसे हम मैनेज करेंगे तो देख रहे हैं, क्योंकि सैटरडे हम लोगों ने डिफरेंट चीजें इंट्रोड्यूस किए, उसको कंटिन्यूड रखना है। इसलिए कंटिन्यू रखना है कंपटीशन की वजह से तुम लोगों का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। अदरवाइज टेस्ट और एग्जाम का सोच के ही माइंड बोलता है कि अभी टाइम टेस्ट में बाद में पढ़ो, इसलिए वो कंटिन्यू करेगा। तो तुम्हारा तो है नहीं, लाइब्रेरी चले जाओ और वहाँ जाके अपना अकाउंट्स का लेक्चर कर लो, ठीक है। और तुम्हारा भी कुछ छोटा बहुत बैठे करो लाइब्रेरी में, जाके तो बैठना लाइब्रेरी कर लो, ठीक है। और क्लास आ जाता 10 बजे क्लास। चलिए One point one, a simple economy. Think of any society. People in the society need many goods and services in their everyday life, including food, clothing, shelter, transport facilities like roads and railways, postal services, and various other services like teachers, doctors. In fact, the list of goods and services that any individual needs is so large that no individual in society, to begin with, has all the things she needs. Every individual has some amount of only of the few goods and services that she would like to use. A family farm may own a family farm may own a plot of land, some grains, farming implements, maybe a pair of bullocks, and also labor services in the family members. A weaver may have some yarn, some cotton, some other instruments required for weaving cloth. The teacher in the local school has the skills required to impart education to the students. Some other in the society may have any resource expecting their own labor services. Each of their decision-making units can produce some goods or services by using the resources that it has and use part of produce to obtain many other goods and services which it needs. For example, the family farm can produce corn, use part of the consumption for purposes and produce clothing, housing, weaving, and can get goods, the services that she wants in exchange for the cloth she produced in her yarn. The teacher can earn some money by teaching students in the school and use the money for obtaining the goods and services she wants. The labor also can try fulfill her needs by using whatever money she can earn by working for someone else. Each individual can thus use her resources to fulfill her needs. It goes without saying that no individual has unlimited resources compared to her needs. The amount of corn that family farm can produce is limited by the amounts of resources it has and hence the amount of different goods. नेक्स्ट and services that it can procure in exchange of corn is also limited. As a result, the family is forced to make a choice between the different goods and services that are available. It can have more of a goods and services only by giving up some amount of other goods or services. For example, if the family wants to have a bigger house, it may have to give up the idea of having a few more acres
of arable land. If it wants more and better education for the children, it may have to give up some of the luxuries of life. The same is the case with all other individuals in society. Every faces a scarcity of resources and therefore has to use the limited resources in the best possible way to fulfill her needs. Next. In general, every individual in society is engaged in the production of some goods or services, and she wants a combination of many goods and services, not all of which are produced by her. Needless to say that there has to be some compatibility between what people in society collectively want to have and what they produce. For example, the total amount of corn produced by family farm along with other farming units in a society must match the total amount of corn that people in the society collectively want to consume. If people in the society do not want as much corn as the farming units are capable of producing collectively, a part of the resources of these units could have been used in the production of some other good or services, which is high demand. On the other hand, if people in the society want more corn compared to what the farming units are producing collectively, the resources used in the production of some other goods and services may be reallocated to the production of corn. Similar is in the case with all other goods or services. Just as the resources of an individual are scarce, the resources of the society are also scarce in comparison to what the people in the society might collectively want to have. The scarce resources of the society have to be allocated properly in the production of different goods and services in keeping with the likes and dislikes of the people of the society. Next. Any allocations of resources of the society would result in the production of a particular combination of different goods and services. The goods and services thus produced will have to be distributed among the individuals of the society. The allocation of the limited resources and the distribution of the final mix of goods and services are the two of the basic economic problems faced by the society. In reality, any economy is much more complex compared to the society discussed above. In the light of what we have learned about the society, let us now discuss the fundamental concerns of the discipline of economics, some of which we shall study throughout this book. Next. Central problems of an economy, production, exchange, and consumption of goods and services are among the basic economic activities of life. In the course of these basic economic activities, every society has to face scarcity of resources. And it is the scarcity of resources that gives rise to the problem of choice. The scarce resources of an economy have competing usages. In other words, every society has to decide on how to use its scarce resources. The problem of an economy are very often summarized as follows. What is produced What is produced in and in what quantities? Every society must decide on how much of each of the many possible goods and services it will produce, whether to produce more of food, clothing, housing, or to have more of luxury goods, whether to have more agriculture goods or to have industrial product and services, whether to use more resources in education and health or to use more resources in building military services, whether to have more of basic education or more of higher education, whether to have more of consumption good or to have investment goods like machine which will boost production and consumption tomorrow. How are these goods produced? Every society has to decide on how much of which of the
resources to use in the production of each of the different goods and services, whether to use more labor or more machines, which of the available technologies to adopt in the production of each of the goods. Next. For whom are these goods produced? Who gets how much of the goods that are produced in the economy? How should the produce of the economy be distributed among the individuals in the economy? Who gets more and who gets less? Whether or not to ensure a minimum amount of consumption for everyone in the economy, whether or not elementary education and basic health services should be available freely for everyone in the economy. Thus, every economy faces the problem of allocating the scarce resources to the production of different possible goods and services, and of distributing the produced goods and services among the individuals within the economy. The allocation of scarce resources and the distribution of the final goods and services are the central problems of any economy. So yes. PPC, production possibility frontier. Production possibility frontier. Just as individuals face scarcity of resources, the resources of an economy as a whole are always limited in comparison to what the people in the economy collectively want to have. The scarce resources have alternative uses, and every society has to decide on how much of each of the resources to use in the production of different goods and services. In other words, every society has to determine how to allocate its scarce resources to different goods and services. An allocation of the scarce resource of the economy gives rise to a particular combination of different goods and services. Given the total amount of resources, it is possible to allocate the resources in many different ways and thereby achieving different mixes of all possible goods and services. The collection of all possible combinations of the goods and services that can be produced from a given amount of resources and a given stock of technological knowledge is called the production possibility set of the economy. Next. If the resources are used in the production of corn, the maximum amount of corn that can be produced in is 4 units, and if all resources are used in the production of cotton, at the most 10 units of cotton can be produced. The economy can also produce 1 unit of corn and 9 units of cotton, or 2 units of corn and 7 units of cotton, or 3 units of corn and 4 units of cotton. There can be many other possibilities. The figure illustrates the production possibilities of the economy. Any point on or below the curve represents a combination of corn and cotton that can be produced with the economic resources. The curve gives the maximum amount of corn that can be produced in the economy for any given amount of cotton, and vice versa. This curve is called the production possibility frontier. The production possibility frontier gives the combinations of corn and cotton that can be produced when the resources of the economy are fully utilized. Note that a point lying strictly below the production possibility frontier represents a combination of corn and cotton that will be produced when all or some of the resources are either underemployed or are utilized in wasteful fashion. देखिए इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, खास के माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा सा हिस्ट्रिकल पार्ट है, तो उसमें इंफॉर्मेशन अगर आप सुन लोगे तो काफ़ी होगा, सिर्फ लिखना आना चाहिए। सुन लिया, इंफॉर्मेशन समझ लिया तो आप लिख लेंगे अगर आपके अंदर राइटिंग स्किल है तो। बट एज फॉर एज माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स गोज, यहाँ पे अगर आप टॉपिक नहीं समझेंगे
टेक्निकल टर्म्स यूज होंगे और उस टेक्निकल टर्म्स का आपको एक सर्टेन मीनिंग है। बहुत सारे ऐसे टर्म है जो इसी सब्जेक्ट में यूज होते हैं, यहाँ पे इसका अगर आपको मीनिंग नहीं समझ आया तो फिर यू विल स्ट्रगल इन दिस पेपर। और ये बात याद रखिएगा, कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। कल को आप में से कोई फाउंडेशन का तैयारी करना चाहेगा, सीए फाउंडेशन, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स कंस्टिट्यूट 70 to 80% ऑफ द सिलेबस ऑफ फाउंडेशन। मैक्रो इंडियन इकोनॉमिक्स 70 to 80%, एंड जो इकोनॉमिक्स आप 11th-12th में पढ़ेंगे सेम इकोनॉमिक्स विल बी देयर, सेम टॉपिक्स विल बी देयर, कुछ एक्स्ट्रा एडिशन होंगे वहां पे बस। तो मान के चलिए 70 to 19%, 90% तक का सिलेबस आपका मैच करेगा, 70 से 90 के बीच। बाकी रेस्ट ऑफ दी पोर्शन आप वहां पे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वहां पे जब आप पढ़ेंगे ना तो इतने डिटेल से इस तरीके से नहीं, वहां पे अप टू दी पॉइंट पढ़ाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिटेल डिस्कशन हो जा रहा है। इस मॉड्यूल से पढ़ाने में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन शेयर्ड है उस इन्फॉर्मेशन को तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जो जो टेक्निकल टर्म्स आएगा उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस लिखाएंगे और यहाँ पे जो डिस्कशन है उस डिस्कशन को समझाएंगे। उसके अलावा और भी कोई एग्जाम्पल्स है तो वो लेंगे। रीडिंग सेक्शन हमने इसलिए रखा हुआ है ताकि आपका रीडिंग कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो, ठीक है। और अगर आप इस काम को, जिनका भी रीडिंग में प्रॉब्लम है, अगर वो घर पे सीरियसली कर रहे हो तो धीरे धीरे सही, स्लो ग्रोथ होगा, बट आफ्टर 1 years आप अपने अंदर बड़ा चेंज देखेंगे, हर एक स्टूडेंट चेंज देखेंगे, ठीक है। अगर आप सही सेंस में, जिस सेंस में आपको रीडिंग सेक्शन टेकअप करने के लिए कहा जा रहा है, कहने का मतलब है कि अगर आप रीडिंग अच्छे से कर ले रहे हैं तो रीड करते वक्त वैसे वर्ड्स फाइंड आउट करिए जहाँ पे आप स्ट्रगल करते हो, मीनिंग नहीं पता है। हमको भी बहुत सारे मीनिंग नहीं पता है। अभी एक वर्ड, अभी नया एक वर्ड आया, सर्च किया, लग रहा था कि ये मीनिंग होगा, बट फिर भी सर्च करा, एग्जैक्टली वही मीनिंग निकला। तो इस तरह का चीज़ है, यानी जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हमको जानना है, नहीं पता है, दैट इज योर पॉइंट ऑफ ग्रोथ। और आपके पास रिसोर्सेज तो पूरी दुनिया जहाँ का चीज़ मोबाइल में, ठीक है ना, इतना बड़ा रिसोर्सेज है ना कि कहीं से कहीं आपको पहुँचा देगा, कहीं से कहीं भी पहुँचा दे। इट हैज़, यू कैन यूज इट बोथ वेज। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग विद सिंपल इकोनॉमी। एक सिंपल डिस्कशन से स्टार्ट हुआ है। सोचिए एक सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी में जो लोग हैं वो करते क्या है, गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं। उन्हें गुड्स और सर्विसेज की ज़रूरत होती है डेली लाइफ में। खाना है, कपड़ा है, रहने के लिए चीज़ें, शेल्टर चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ चाहिए, रोड्स, रेलवेज, पोस्टल सर्विसेज और इस तरीके की बहुत सारी और भी सर्विसेज चाहिए, जैसे कि टीचर्स का, जैसे कि डॉक्टर्स का। ज़रूरत है ना हमारी। अगर हम इनफैक्ट अगर हम बात कर लें तो लिस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज तो आप आज के डेट में तो काउंट करते चले जाओ। गुड्स और सर्विस का लिस्ट अगर ड्रॉ करना शुरू करोगे तो लिस्ट खत्म नहीं होने वाला। और बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज तो हम जान भी नहीं रहे होंगे। एक सेगमेंट अगर उठाओगे तो उसमें भी वैराइटीज ऑफ गुड्स पड़े हुए। सो any individual need is so large that no individual in society to begin with has all the things he needs. कोई भी पर्सन उठाओ, टेक बिल गेट्स, टेक द एग्जांपल ऑफ जेफ, क्या नाम है उसका, अमेज़न का, जेफ बेजोस, क्या नाम है ना। उसी तरीके से एलन मस्क, कोई भी बड़े से बड़े एंटरप्रेन्योर जिसको आप समझते हैं कि ये दुनिया का सबसे रईस आदमी है, इफ़ यू आस्क फ्रॉम देम, उनको भी रिसोर्सेज की कमी है। क्यों? क्योंकि उनका ज़रूरत ज़्यादा है। बड़ा बिजनेस को हम लोग देख करके सोचते हैं ना कि उसके पास तो कोई कमी नहीं होगा, क्या लाइफ है इसके पास, तो सब कुछ है। लेकिन बड़ा बिजनेस है ना, तो बड़ी लाइबिलिटी भी है उसके ऊपर, बड़े खर्चे भी हैं उनके। बड़ा सा मॉल चला रहा है, कस्टमर नहीं आएगा ना तो महीने का खर्चा उसका बहुत बड़ा है, उसको ज़्यादा बड़ा हेडेक होना है। सो नीड्स, जो इंडिविजुअल नीड्स है दैट आर अनलिमिटेड। एक पॉइंट नीड के बारे में क्या पता चला, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। जितनी हमारी ज़रूरत है ना उतना हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। हम जो चीज़ें चाहते हैं सबके सब हमारे पास नहीं है अभी अवेलेबल। सो एवरी इंडिविजुअल हैज सम अमाउंट ऑफ only a few of the goods and services that she would like to use. जितनी चीज़ें हम इस्तेमाल करना चाहते हैं उसमें से कुछ ही चीज़ हमारे पास अवेलेबल, सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। और हो भी क्यों, हम एक ऐसे लाइफ में हैं जहां जो लाइफ है लिमिटेड, दिस लाइफ इज लिमिटेड। तो क्या लिमिटेड लाइफ में अनलिमिटेड चीज होना चाहिए क्या? इफ यू हैव टू लिव अ लिमिटेड लाइफ यू मस्ट बी गिवन लिमिटेड रिसोर्सेज। तो ऊपर वाले ने प्लानिंग बहुत अच्छे से करा है,
यहाँ तो जा रहे हो 70-80 साल के लिए, तो 70-80 साल का व्यवस्था करो ना। बट यहाँ इंसान आकर के ये जमा करो, वो जमा करो, वो जमा करो। एंड द अल्टीमेट पॉइंट इज दो चीजें हैं, एक है टेंजिबल चीजें और एक है इनटेंजिबल चीज। टेंजिबल चीजें कहने का मतलब है जैसे हम खाना खाते हैं, तो द फूड इज टेंजिबल, राइट? देख सकते हैं हम लोग, फिजिकली स्मेल कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखना, तो टच करना, ये तो हमारे ये बता रहा है कि वो फिजिकल चीज है, राइट? बट खाना खाने के बाद जो टेस्ट हमें मिलता है या जो हमारा भूख मिटता है, ये क्या है? ये इनटेंजिबल। एंड दिस इज सेम फॉर ऑल। कोई आदमी नॉर्मल खाना खा करके उतना सेटिस्फैक्शन हासिल नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसको है, उसका लाइफस्टाइल हाई है और उसको अच्छे खाने का जरूरत है। नॉर्मल सा खाना, क्या खाना मिल गया, he wants to go for something, ऐसे रेस्टोरेंट में जाना पसंद कर रहा है जहाँ पे अच्छी डिश मिले, वहां जाके उसको सेटिस्फैक्शन फील हुआ, हाँ अब खाया। तो द टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कंबाइन करो। उसी तरीके से एक गरीब आदमी बेचारे को खाना नहीं मिल रहा है, अगर उसको सिर्फ खाना मिल जाए, लुक एट द सेटिस्फैक्शन। सो व्हेन यू कंबाइन दीज टू थिंग्स, ये कंप्लीट चीजें हैं। सिर्फ टेंजिबल और इनटेंजिबल चूंकि हमें दिखता है ना, तो हम सोचते हैं कि वाह सब कुछ तो यही है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब आप लोग जब वेल्थ जमा करते हैं तो उनको लगता है कि हम, मेरे पास ज्यादा दौलत हो जाएगा तो हम आराम से रहेंगे। जितना ज्यादा दौलत होगा उतना ज्यादा रेस्टलेस भी रहोगे, दैट इज ऑल्सो ए फैक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि गरीब बने रहो, इसका मतलब ये है कि जरूरत और जरूरत से थोड़ा ज्यादा पैसा बनाओ, इतना ज्यादा पैसा बनाओ कि ऐसे वाले ना रहो, ऐसे वाले ना रहो, ऐसे वाले रहो। मतलब ऐसे और ऐसे में क्या फर्क है? ऐसे में मांग रहे हो, दे दो, और ऐसे में देने वाले हो, ले लो। सो बिकम द गिवर रादर देन द टेकर। इतना होना चाहिए आपके पास। A family firm may own a plot of, कुछ एग्जांपल्स के साथ यहाँ पे इस आगे के पैराग्राफ में है कि जाहिर सी बात है नीड्स के बारे में लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो और हम बात करें कि अनलिमिटेड वांट्स है और हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। खुद का ही एग्जांपल उठा के लो ना, क्या क्या चाहते होगे तुम कि मेरे पास ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए, बट इट्स नॉट हैपनिंग। फेस्टिवल आता होगा तो तुम सोचते हो कि 4-5 ड्रेस खरीद लें, लेकिन घर से मिला है तो नहीं पैसा कि शायद 1 से 2 ड्रेस मुश्किल से हो जाए। दुकान पे गए हो तो 4-5 ड्रेस पसंद आ गया, अब करें तो क्या करें? और एक फैक्ट ये भी है, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट ये भी है कि अगर आपको कोई चीज डिफिकल्टी से मिला है ना, यू विल एंजॉय दैट थिंग मोर। और कोई चीज आसानी से मिल गया है ना, यू विल नॉट बी केयरिंग ऑफ दैट। फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ज्यादा केयर नहीं करोगे। देख लो ढाके, जिन बच्चों को आराम से खिलौना मिल जा रहा है, फेंका हुआ है, तोड़ा हुआ है, और जिसको नहीं मिल रहा है उसको जाके देखो कितने संभाल के रखा हुआ है। सो दैट्स हाउ द थिंग्स चेंजेस। तो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि एक फैमिली फॉर्म जो है में ओन ए प्लॉट, उसके पास एक जमीन हो सकता है जिसमें वो अनाज उगाएगा, फार्मिंग करेगा। हो सकता है कि उसके पास एक पेयर ऑफ बुलडॉग्स भी हो और वो लेबर सर्विस भी खुद का प्रोवाइड कर रहा हो। मतलब इतना सारा रिसोर्सेज है उसके पास, खेती कर रहा है, किसान है, तो जाहिर सी बात है जानवर रहेगा ही, जमीनें रहेंगी, जानवर होंगे, खुद का मेहनत भी करेगा। दिस इज व्हाट ही इज एम्प्लॉइंग। उसी तरीके से दूसरे का एग्जांपल ले लो, एक वीवर है, वो क्या करता है? सूत खरीद के लाता है, सम कॉटन और अदर इंस्ट्रूमेंट खरीद के लाता है, उसके बाद कपड़े बुनता है। उसी तरीके से जो टीचर है, चाहे वो लोकल स्कूल के हो, उनके पास टीचिंग स्किल्स होती हैं और वो उस स्किल्स का इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स को एजुकेट करता है। कुछ और एग्जाम्पल ले लो सोसाइटी का, जहाँ पे सोसाइटी में नॉट हैव एनी रिसोर्सेज, कुछ के पास कुछ ऐसे लोग भी आपको दिखेंगे जिसके पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं है, सिवाय इसके कि वो सिर्फ खुद का मेहनत कर सकता है और कुछ नहीं उसको, बट फिजिकल एफर्ट करना आता है, मजदूर लोग। नाउ each of these decisions making units can produce some goods or services by using the resources that it has and use part of the produce to obtain the many other goods and services which it needs। तो जितने भी एग्जाम्पल आपने लिया, चाहे टीचर का, चाहे डॉक्टर का, या फिर किसान का, या फिर वीवर का, सब क्या करता है? अपना अपना काम करता है। जिसके पास जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज वो लगाता है और उससे गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करता है। लेकिन याद रखिए कि कोई भी इंडिविजुअल हर वो गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन नहीं कर सकता जो उसको चाहिए। इसका मतलब है दैट एवरी इंडिविजुअल इज डिपेंडेंट अपॉन अदर्स। हर फैमिली दूसरी फैमिली पर डिपेंडेंट है, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल पर डिपेंडेंट है, बिकॉज
नॉट ए सिंगल पर्सन कैन प्रोड्यूस द इंटायर गुड्स एंड सर्विसेज दैट ही नीड्स, ही और शी नीड्स। ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी बिजनेसमैन सारा का सारा प्रोडक्शन, जो जिन चीजों का वो प्रोडक्शन, जिन चीजों का उनको जरूरत है सब उसके पास नहीं होगा। कुछ चीजें वो बनाएगा तो कुछ चीजें वो खरीदेगा। दैट्स हाउ द थिंग गोज ऑन। ठीक है, जैसे फैमिली फॉर्म का एग्जांपल दिया तो हो सकता है वो कॉर्न प्रोड्यूस करे और कुछ कॉर्न इस्तेमाल कर ले और कुछ कॉर्न मार्केट में जाके बेच दे, और जो कॉर्न वो मार्केट में बेचेगा तो बेच के पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उससे कोई और जरूरत की चीज खरीदेगा। हो सकता है कपड़ा खरीद के लाए, हो सकता है घर मकान खरीदे या कुछ और चीजें खरीदे। सिमिलरली द वीवर कैन गेट द गुड्स एंड सर्विसेज दैट ही वांट्स इन एक्सचेंज ऑफ क्लोथ्स। उसी तरीके से टीचर का एग्जांपल है कि वो स्टूडेंट्स को पढ़ा के फीस अर्न करते हैं और उसके बाद मार्केट में जाके अपने जरूरत की चीजें लेकर के आते हैं। तो कोई सा भी एग्जांपल उठाओ ना, इसमें जितने भी एग्जांपल आप उठाओगे तो यहां से आपको एक ही चीज पता चलेगा, दैट it goes without saying that no individual has unlimited resources compared to her needs. Resources unlimited नहीं है, resources क्या है? Limited. और needs क्या है? तो ये कैट ऑन माउस का रेस है, माउस एंड कैट का रेस है, टॉम एंड जेरी का रेस है। ठीक है ना, टॉम एंड जेरी, फास्ट कौन है? टॉम एंड जेरी में फास्ट कौन है? पक्का तुम तो बहुत बचपन में देखा याद है, टॉम फास्ट है, जेरी फास्ट है। अच्छा, अगर जेरी फास्ट है तो इसका मतलब समझ जाइए कि जेरी नीड्स है और टॉम क्या है? रिसोर्सेस। तुम्हारा नीड आगे निकल रहा है, तुम्हारे पास रिसोर्सेस हमेशा क्या है? कम है। इट इज दैट काइंड ऑफ रेस, लाइफ ऐसा ही है। ठीक है, so the amount of corn that the family farm can produce is limited, amount of resources it has, and hence the amount of different goods and services that it can produce in exchange of corn। तुम लोग 15 मिनट पहले क्या एंटर कर गए? हाँ, भीड़ हो गया क्या लाइब्रेरी में? ज्यादा लोग हो गए क्या लाइब्रेरी में? ओ, अच्छा ठीक है, आ तो गए हो बट साइलेंस मेंटेन करना और पीछे गेट सही कर लो। तो रिसोर्सेस के बारे में क्या पता चला? रिसोर्सेस के बारे में हमें एक पॉइंट तो पता चला कि रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड। ठीक है, ये है पहला पॉइंट रिसोर्सेस के बारे में, दैट रिसोर्सेस इज लिमिटेड। नाउ आगे चलते हैं। तो फार्म फैमिली का एग्जांपल दिया है कि फार्म फैमिली जो है वो कॉर्न का प्रोडक्शन कर रही है, तो अपने लिए इस्तेमाल करने के अलावा जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको मार्केट में जाके सेल कर रहे हैं। As a result, the family is forced to make a choice between the different goods and services that are available. It can have more of goods or services only by giving up some amounts of other goods or services. अब देखो, जब भी हम कोई गुड्स और सर्विस खरीदने जाएंगे तो हमें ऐसा नहीं होगा कि क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हमें कुछ चीज खरीदना है, कुछ चीज सैक्रिफाइस करना है। वी कैन नॉट हैव ऑल। ठीक है, so if the family wants to have a bigger house, it may have to give up the idea of having a few more acres of arable land. फॉर्म फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब वो किसान फैमिली कॉर्न का प्रोडक्शन करे ना। अब अगर इनको जरूरत पड़ जाए कि घर चाहिए, थोड़ा सा बड़ा चाहिए, फैमिली बड़ी हो गई, घर बड़ा करना है, तो जब घर बड़ा करेंगे तो फार्म छोटा हो जाएगा। सीधी सी बात है, जो एरिया, जो जमीन, जिस जमीन पे आप खेती करेंगे वो छोटा होना है। उसी तरीके से इफ इट वांट्स मोर एंड बेटर एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, हो सकता है कि इनको अपना लग्जरियस लाइफ को गिव अप करना पड़े। सो द सेम इज द केस विद ऑल अदर इंडिविजुअल इन दिस सोसाइटी। सेम होता है सारे इंडिविजुअल के साथ सोसाइटी। ठीक है, एवरीवन फेसेस स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देयरफॉर हैज टू यूज द लिमिटेड रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे टू फुलफिल हर नीड्स। तो यहाँ पे लास्ट कैच वर्ड क्या आ रहा है? ये लास्ट सेंटेंस, कि हर एक इंसान, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज? व्हाट डू यू मीन बाय स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज? व्हाट डू यू मीन बाय स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज? क्वेश्चन नंबर 1।
ठीक है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस क्या है, इसका मीनिंग आप लोगों को इसका आंसर लिखना है। ठीक है, लिख लेना बाद में, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड है, और रिसोर्सेज सिर्फ लिमिटेड नहीं है, अभी का जो आपको एग्जांपल दिया गया कि वो फार्मर जिसके पास जमीन है, तो वो जमीन तो है खेती के लायक, तो क्या सिर्फ खेती ही हो सकता है उसमें, या वो अपने लिए रहने के लिए मकान भी बना सकता है, मकान भी बना सकता ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिसोर्सेज लिमिटेड तो है ही है, रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज भी है। एक से ज्यादा यूज है नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर वाला लैंड पे सिर्फ उसको एग्रीकल्चर ही करना होता, बट ऐसा है नहीं, वो वहां पे रहने के लिए मकान बना सकता है, हो सकता है कि फैक्ट्री लगाना चाहता है तो वो भी कर सकता है वो। बात समझ आ रहा है? सो रिसोर्सेज हैव मल्टीपल यूजेस। तो रिसोर्सेज के खास के साथ ये दो प्रॉपर्टीज है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ हमारे पास आ रहा है ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। ये क्या है? अनलिमिटेड। और दूसरा डिफर्स इन अर्जेंसी। दो प्रॉपर्टी है आपके सामने, एक तो ये कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, और दूसरा ह्यूमन वांट्स जो है ना वो डिफर करते हैं अर्जेंसी में। क्या मतलब है इसका? अनलिमिटेड वाला पॉइंट तो समझ आ गया कि हमारी जरूरतें एक फुलफिल हुई, दूसरी आ गई, दूसरी फुलफिल हुई, तीसरी जरूरत सामने में, इस तरीके से दिस इज हाउ लाइफ गोज ऑन। लेकिन इसका क्या मतलब है डिफर्स इन अर्जेंसी? इसका मतलब ये है कि कौन सा वांट्स किस समय ज्यादा जरूरी है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करे। अब तुम मार्केट निकले थे अपने लिए कपड़ा खरीद, क्या खरीदने? फर्स्ट शॉप ट्रैवल किए, सेकंड शॉप ट्रैवल किए, थर्ड शॉप ट्रैवल किए, कपड़ा पसंद नहीं आ रहा, अब इतना ट्रैवलिंग में लग गया है भूख, तो चौथा शॉप नहीं जाओगे, पहले रेस्टोरेंट जाओगे, क्या करोगे? खाना खाओगे। तो तुम तो अपने कौन से वांट्स को सेटिस्फाई करने निकले थे? कपड़ा खरीदने ना। लेकिन हुआ क्या, उससे अर्जेंट वांट पहले आ गया, बल्कि नीड इसको कहिए आप, वो आ गया, क्या हो गया? भूख लग गया, तो पहले भूख मिटाओगे। इज दैट क्लियर? तो वांट्स डिफर करता है किसमें? अर्जेंसी में। और आपको पता है जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं ना, ये दोनों जब एक साथ मिलते हैं तो प्रॉब्लम अराइज होता है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होने के चार कारण। वांट्स अगर लिमिटेड हो तो प्रॉब्लम ही नहीं अराइज होगा, जो कि है नहीं। रिसोर्स वांट्स अनलिमिटेड है, इस वजह से भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है। रिसोर्सेज लिमिटेड है, इस वजह से भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम तब भी अराइज होता है जब आपको ये सोचना होता है कितने बड़े एरिया में घर बनाए और कितना एरिया में खेती करे, तब भी प्रॉब्लम अराइज हुआ। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम तब भी अराइज हो गया जब आप अचानक से एक नीड था, उससे ज्यादा अर्जेंट नीड कोई आ गया। सो देयर आर 4 रीजन जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिसको हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बोलते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसको कहते हैं? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को। इज दैट क्लियर? तो दूसरा क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम? व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड व्हाई डज इट अराइज? लिख लिए? लिख लिए? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम सिर्फ इस वजह से भी अराइज नहीं होता। अब जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया कि फार्मिंग कम्युनिटी का एग्जांपल लिया, मान लो कॉर्न एक प्रोडक्ट है। अब इस कॉर्न का जितना डिमांड है, अगर फार्मर्स ने उतना ही सप्लाई दिया तो बैलेंस सिचुएशन है, जितना रिक्वायरमेंट उतना प्रोडक्शन। लेकिन रिक्वायरमेंट जितना है उससे कम प्रोडक्शन हो तो भी प्रॉब्लम, और रिक्वायरमेंट जितना है उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो तो भी प्रॉब्लम। ठीक है, एक में ओवर प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है और एक में अंडर प्रोडक्शन का प्रॉब्लम। अगर प्रोडक्शन कम होगा तो चीजें महंगी हो जाएगी, और अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा तो फार्मर को नुकसान हो जाएगा, चीजें सस्ती बिकेंगी। हो सकता है उसका कॉस्ट भी रियलाइज ना हो, अगर मार्केट पे छोड़ दिया जाए तो हो सकता है उसका कॉस्ट भी रियलाइज हो। So if the people in this society do not want
as much corn as the farming units are capable of producing collectively, a part of the resources of these units could have been used in the other production of some other goods or services which is high in demand. तो अगर मान लीजिए ऐसा ही सोसाइटी डिसाइड कर दिया, अगर कोई चीज है जिसकी सोसाइटी को जरूरत नहीं है और वो चीज हमने प्रोड्यूस कर ली, और कोई ऐसा चीज होगा जो मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगा, कॉर्न ओवर प्रोडक्शन हो गया और ऑनियन शॉर्टेज में चला गया, हुआ ना, तो क्या होगा, मार्केट में दो प्रॉब्लम राइज होगी, एक तो ये कि सस्ता बिक रहा है और दूसरा ये कि वो मिल शॉर्टेज में, डिमांड ज्यादा चाहिए। तो अगर वो इकोनॉमी जो इन चीजों को बैलेंस तरीके से यूज करती है वो बेस्ट सोसाइटी मानी जाती है। रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल यूज करना, दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न। समझ आ रहा है? एक कंट्री में इकोनॉमी को समझना बहुत जरूरी है। एक कंट्री है, उस कंट्री में क्या है ना कि जब भी ओवर प्रोडक्शन, मान लिया गवर्नमेंट के पास डेटा आ गया और गवर्नमेंट को पता चल गया कि ओनियन का प्रोडक्शन इतना है और हमें इतना चाहिए था, और अक्रॉस दी वर्ल्ड पता किया गया, दूसरे दुनिया में भी, दूसरे देश में भी पता चल रहा है कि इसका वहां भी प्रोडक्शन ज्यादा है, तो अब क्या करेगी? तो पता है वो कंट्री कैसे डिसाइड करती है, जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ सबको डंप कर दो। कहां डंप कर दिया? ओशियन में डंप। एक्स्ट्रा ऑनियन नंबर क्वांटिटी ले करके सबसे डंप कर दिया गया। क्यों? प्राइस क्रैश ना करे, फार्मर्स को उसका रीजनेबल प्राइस मिल जाए। ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन, जाहिर सी बात है बैलेंस सिचुएशन नहीं रहेगा तो आपको चीज़ों को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिसीजन लेना पड़ेगा। तो अगर हमें जिन चीज़ों का जरूरत नहीं है या जिन चीज़ों का कम जरूरत है, उन चीज़ों को कम प्रोडक्शन करके उन्हीं रिसोर्सेज को हम निकाल के कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? दूसरी चीज़ों का प्रोडक्शन में, जहां जिन चीज़ों का हमें ज़्यादा जरूरत। इसको कहते हैं बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड दिस इज व्हाट वी लर्न इन इकोनॉमिक्स कि रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से कैसे यूज करते हैं। इसके सारे टेक्निक्स हमें इसी सब्जेक्ट में सीखने को मिलते हैं। सिमिलर इज द केस विद ऑल अदर गुड्स और सर्विसेज, इसलिए जितने भी गुड्स और सर्विसेज ऐसा ही केस उसमें भी होता है। जैसे एक इंडिविजुअल के पास अगर स्कार्स रिसोर्सेज है सोसाइटी में, तो वो स्कार्स है इन कंपैरिजन टू व्हाट द पीपल इन द सोसाइटी माइट कलेक्टिवली वांट टू हैव। The scarce resources of the society have to be allocated properly in the production of different goods and services in keeping with the likes and dislikes of the people of the society. अब देखो, हमें सीखना यही होता है कि जो रिसोर्सेज ऑलरेडी कम है, रिसोर्सेज स्कार्स है मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। नहीं, अब ठंड का मौसम आ गया, सब लोग चाह रहे हैं कि धूप निकले, अच्छे से धूप खाएं, और सूरज बेचारे निकल ही नहीं रहे, तो कह सकते हैं ना कि सनलाइट स्कार्स है। और उल्टा सिचुएशन, गर्मी में चाहते हैं कि थोड़ा बादल बादल घिरा रहे, धूप ही ना निकले, लेकिन अवेलेबिलिटी ज्यादा है, सब डिमांड कम है लेकिन अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो इस सिचुएशन को बोलेंगे अबेंडेंस। क्या बोलेंगे? अबेंडेंस। स्कार्सिटी समझ आया? तो स्कार्सिटी का अपोजिट वर्ड क्या है? अबेंडेंस। जरूरी नहीं कि सबका हम क्वेश्चन ही लिखा है, बट इफ यू राइट इट डाउन, तो व्हाट डू यू मीन बाय अबेंडेंस? तो समझ आ गया, जब रिसोर्सेज का सप्लाई ज्यादा हो, डिमांड कम हो, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलेंगे? अबेंडेंस। द रिसोर्सेज आर इन अबेंडेंस। तो स्कार्स रिसोर्सेज को सोसाइटी में हम लोगों को सही तरीके से इस्तेमाल करना होता है डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, कीपिंग इन माइंड द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ द पीपल। अब हमने ऐसी सोसाइटी में ऐसा गुड्स प्रोड्यूस कर लें जिसके डिसलाइक ज्यादा है, लाइक्स कम है, तो वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हुआ ना। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज मतलब इकोनॉमिकली लॉस। अगर हमने रिसोर्सेज को सही जगह पे लगाया तो वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, मतलब वी विल बी इन अगेन गेनिंग सिचुएशन। तो रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इट रिक्वायर्स ब्रेन टू यूज दैट। Any allocation of resources of the society would result in the production of a particular combination of different goods and services. तो जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होता है बाय द डिफरेंट प्रोड्यूसर्स, इसी को वापस से एक्सचेंज में लाया जाता है। यानी जो भी गुड्स सर्विस हमने प्रोड्यूस करा ना, बेचेंगे, हर इंडिविजुअल अपने द्वारा प्रोड्यूस किया गया गुड्स और सर्विसेज को दूसरे को सप्लाई करता है, और फिर उससे जो एक्स्ट्रा वो कमाता है उससे अपनी जरूरतों को फर्दर मार्केट से जाके खरीदता है। दिस इज हाउ लाइफ गोज ऑन। In reality, an economy is much more complex compared to the society discussed above.
ऊपर में तो हमने छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए ना, रियलिटी में अर्थव्यवस्था इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि सिर्फ ये एक एरिया से रिलेटेड नहीं होता। आज के डेट में तो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, एंड द नंबर एंड टाइप्स ऑफ गुड्स आप सोच नहीं सकते। तो कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का इसी बुक में। इसमें सबसे पहले कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम जिसको हम लोग कह रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो यहां से पहला सवाल राइज हो गया, व्हाट डू यू मीन, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एंड इस सेंट्रल प्रॉब्लम में आपको 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम नजर आएंगे। पहला आया व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस, और तीसरा क्वेश्चन क्या है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब देखो इससे पहले भी कुछ डिस्कशन हुआ, उसको भी समझ लेते। 2 पॉइंट लिखाई चुके हैं, एक स्कार्सिटी और एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, सही है। और इससे पहले भी कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले लाइन में डिस्कस हुआ है, और वो क्या है, व्हाट आर द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। क्या है, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजम्पशन, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। क्या करेंगे हम, कोई गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करेंगे, कोई गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करेंगे तो उसको एक्सचेंज करेंगे यानी बेचेंगे, बेच करके कुछ अपनी जरूरत के लिए गुड्स और सर्विस खरीद के लाएंगे इस्तेमाल करने के लिए। तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज। आपने प्रोडक्शन करा, अपने लिए इस्तेमाल करा, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को बेच दिया, उससे उसको बेचने के बाद जो एक्स्ट्रा आपने अर्निंग करी उससे फर्दर कोई कुछ अपने जरूरत का चीज खरीदा। तो दीज आर द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। क्लियर है। इसमें एक और इकोनॉमिक एक्टिविटीज तुम ऐड ऑन कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि हमको पता है कि आज जो हम चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमको आने वाले टाइम में उससे ज्यादा चाहिए होगा। सो वी हैव टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए ज्यादा गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए हमें आज के डेट में रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसलिए देखेंगे फैक्ट्रीज, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम सब ग्रो कर रहे हैं। क्लियर है। स्कार्सिटी तो हम ऑलरेडी जानते ही, हमको पता है कि ये इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फुलफिल करने के लिए हमेशा देयर विल बी स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, और जहां प्रॉब्लम है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का, वहां अराइज हो जाएगा क्या करें क्या ना करें, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। रिसोर्सेज कहां इस्तेमाल करें, कहां इस्तेमाल ना करें। क्लियर है। इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो किस वजह से अराइज होता है। मेन 2 रीजन है, और उन 2 के अंदर 2 रीजन है। ह्यूमन वांट्स जो कि अनलिमिटेड है और चेंज करता है ये इंटेंसिटी में, और दूसरा रिसोर्सेज जो कि हमारे पास लिमिटेड है ना, और जिसका अल्टरनेटिव यूज भी। अब देखो 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पहला इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या प्रोड्यूस करें और कितने क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करें। ये बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क होता है एक इकोनॉमी के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तुम बिजनेस कर रहे हो, या मान लीजिए कि कोई सा भी बिजनेस उठा करके देखो, जैसे मान लो कोई रेडीमेड का ही शॉप खोला हुआ है, तो कौन सा कपड़ा खरीद के लाया, कौन सा ना लाया, डिसीजन लेना है ना उसको। अब उसमें उसका डिसीजन सही निकला तो वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, गलत डिसीजन ले लिया तो क्या होगा, लॉस में जाएगा, या फिर उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। तो इसी तरीके से इंडिविजुअल के साथ साथ एक इकोनॉमी में भी डिसीजन लेना पड़ता है कि कितना गुड्स प्रोड्यूस करेंगे और कौन सा गुड्स किस क्वांटिटी। दिस इज द फर्स्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो इसमें 2 पॉइंट आ रहा है, हर सोसाइटी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि हाउ मच ऑफ ईच ऑफ द मेनी ऑफ द पॉसिबल गुड्स एंड सर्विसेज इट विल प्रोड्यूस। एंड चाहे वो फूड हो, क्लोथिंग हो, हाउसिंग हो, या लग्जरियस गुड्स हो, कौन सा गुड्स प्रोड्यूस किया जाएगा सोसाइटी में। या फिर हो सकता है एग्रीकल्चर गुड्स हो, या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो, या सर्विसेज हो। वेदर टू यूज मोर रिसोर्सेज इन एजुकेशन एंड हेल्थ, और टू यूज मोर रिसोर्सेज इन बिल्डिंग मिलिट्री सर्विसेज। या फिर ये भी सोचना पड़ता है कि हम मिलिट्री सर्विसेज को स्ट्रॉन्ग करें या एजुकेशन और हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करें। दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा ना। आप मिलिट्री सर्विसेज स्ट्रॉन्ग करोगे तो वॉर लड़ने जाओगे, वहां पे काम आना है, और एजुकेशन हेल्थ को अगर स्ट्रॉन्ग करोगे तो तुम्हारा इकोनॉमी ग्रो करेगा, बिकॉज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो ये डिसीजन लेना पड़ता है। अब रशिया का जंग चल रहा है तो वो ज्यादा फोकस करेंगे मिलिट्री सर्विसेज पे, ठीक है। अभी हम कोई जंग में नहीं है तो हम ज्यादा फोकस करेंगे एजुकेशन और हेल्थ पे।
So whether to have more of consumption goods or to have investment goods like machine which will boost production and consumption to more. साथ ही साथ ये भी डिसीजन लेना पड़ता है कि हम कंजम्पशन गुड्स ज्यादा प्रोडक्शन करें या फिर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करें. मतलब आज के लिए हम ज्यादा प्रोडक्शन कर ले या आज के लिए सब लिमिटेड प्रोडक्शन करें और फ्यूचर के लिए हम प्रोडक्शन को बढ़ाएं यानी इन्वेस्टमेंट ज्यादा. डिसीजन लेना पड़ता है. ठीक है, आपके पास 1 साल का इनकम आया तो सारा खर्चा कर दें, कुछ बचा के रखे, लेते हैं ना डिसीजन. तो उसी तरीके से इकोनॉमी को भी ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है. तो ये पहला इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो एक सोसाइटी को लेना पड़ता है. दैट इज व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी. कौन कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे और किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे. ये पहला इकोनॉमिक प्रॉब्लम है. दूसरा, कोई सा भी गुड्स उठाओ, टेक एग्जाम्पल ऑफ एनी ऑफ द गुड्स. क्या लगता है आपको एक ही तरीके से बनता है वो? क्या नहीं ना. टीचिंग ही ले लो ना. अभी तुम लोग क्लास में आके बैठ के पढ़ रहे हो, कोई मोबाइल पे बैठ के पढ़ ले. मल्टीपल वेज है ना. उसी तरीके से कोई सा भी गुड्स आप का भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, तो आप ये देखेंगे कि उसको प्रोड्यूस करने का, उन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का एक से ज्यादा वेज होगा. बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा रहे हो, सिर्फ लेबर लगा दो, लेबर कम लगाओ, मशीन ज्यादा लगा दो, या हो सकता है दोनों को बैलेंस करके लगाओ. पॉसिबिलिटी है कि नहीं है. इसका मतलब यह है कि हम उन गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करेंगे, ये हमारे सामने सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. ऐसा नहीं है कि यूएसए में ज्यादा मशीन लग रहा है तो हम भी ज्यादा मशीन लगा लें तो हमारे लेबर बेकार पड़ जाएंगे. क्यों? हमारी आबादी ज्यादा है. वी विल क्रिएट इकोनॉमिक अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम. अगर हमारे पास लेबर फोर्सेस ज्यादा है तो हमें कोशिश करना है कि उन लेबर फोर्सेस को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन करना है. ब्लाइंडली नहीं. ब्लाइंडली करेंगे तो नतीजा बुरा होगा. ठीक है. तो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम अगर किसी इकोनॉमी में है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इट इज द पॉलिसीज दैट आर बिल्ट बाय दैट आर फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट. जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है ना, उन पॉलिसीज का असर पड़ता है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट. और ये छोटा मोटा टास्क नहीं है. एक घर के लिए डिसीजन लेना आसान नहीं होता है, तो देश की बात, करोड़ों पर 100 कुछ करोड़ लोग, 130 करोड़, पता नहीं चाइना को भी छोड़ने वाले हम लोग पीछे. छोड़ दिया, छोड़ ही दिया. तो यहाँ पे देखो टेक्नोलॉजी 2 तरह का है. कितने तरह का है? इसको बोलते हैं, इसके लिए याद रखिएगा, एक कहलाता है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और दूसरा कहलाता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी. लेबर इंटेंसिव मतलब ज्यादा लेबर का इस्तेमाल होगा, मशीन का इस्तेमाल कम होगा. और कैपिटल इंटेंसिव मतलब मशीन्स और इक्विपमेंट का इस्तेमाल ज्यादा होगा, लेबर का इस्तेमाल कम होगा. तो हर एक प्रोड्यूसर को यह डिसीजन लेना पड़ता है कि जब वो प्रोडक्शन करे या इकोनॉमी में जब कोई चीज का प्रोडक्शन हो तो ज्यादा इस लेबर का इस्तेमाल करना है या ज्यादा मशीन का, ये डिसीजन लेना पड़ता है. अगर हम ज्यादा लेबर का इस्तेमाल करेंगे तो प्रोग्रेस स्लो होगा, चीजें स्लो बेसिस पे प्रोड्यूस होंगी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ज्यादा रोजगार जनरेट होगा. और अगर हम इधर स्विच कर जाते हैं कैपिटल इंटेंसिव पे तो डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा, लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. समझ रहे हो? तो इसका मतलब यह है कि अपनी चादर के हिसाब से पैर फैलाइए. चादर बड़ा करिए तो करिए बड़ा. इसका मतलब चादर बड़ा करने का मतलब ये होगा कि आप अगर आपने टेक्नोलॉजीज को उस लेवल पे लाया है तो फिर बाकी लेबर फोर्स को भी उस लेवल से ट्रेन करना होगा, स्किल्ड करना होगा, ताकि उसका ये जॉब जाए तो कोई और जॉब उसके पास अवेलेबल हो. लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते चले जाओ बिना लेबर फोर्स को स्किल्ड किए हुए तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, जिसको आप सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. क्लियर है? एंड आज के लिए लास्ट पॉइंट, फॉर होम आर दोज गुड्स प्रोड्यूस. ये गुड्स किन के लिए प्रोड्यूस होगा, यानी कौन लोग हैं जो उन गुड्स का इस्तेमाल करने के लिए जाएंगे. देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो भी गुड्स और सर्विसेज सोसाइटी में प्रोड्यूस होता है, सारा गुड्स और सर्विसेज हर कोई इस्तेमाल नहीं करता. ठीक है? जैसे कुछ गुड्स को हम कहते हैं नॉर्मल गुड्स, सब लोग इस्तेमाल करते हैं. कुछ गुड्स को हम कहते हैं लग्जरियस गुड्स, सब इस्तेमाल नहीं करता. कुछ गुड्स को हम कैटेगराइज करते हैं कंफर्ट गुड्स. तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स.
तो कौन व्यक्ति कौन सा गुड्स का इस्तेमाल करेगा, यानी जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं वो किन लोगों के लिए प्रोड्यूस हुई हैं, ये डिसीजन लेना भी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। अब इकोनॉमी में मान लो एक अर्थव्यवस्था में फैन का प्रोडक्शन कम हो जाए और एसी का प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, फैन का शॉर्टेज हो जाएगा मार्केट में और एसी ओवर प्रोड्यूस रहेगा। नतीजा एसी का ओवर स्टॉकिंग हो जाएगा जबकि फैन मार्केट में शॉर्टेज में रहेगा। अगर उस सोसाइटी में फैन का डिमांड ज्यादा है तो कौन सा गुड्स कितना प्रोड्यूस किया गया, किन के लिए प्रोड्यूस किया गया, वो गुड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके भी दो एस्पेक्ट हैं। कितने एस्पेक्ट हैं, यानी फॉर होम दीज गुड्स आर प्रोड्यूस, इसके भी दो एस्पेक्ट हैं। एक कहलाता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और एक कहलाता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन का ये एस्पेक्ट देखेंगे कि जो भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुआ है वो किन के लिए हुआ है। जैसे आपको पता है एसी का एग्जांपल दिया, किसके लिए प्रोड्यूस हुआ होगा, अपर मिडिल क्लास रिच क्लास के लिए प्रोड्यूस हुआ है, सही है। वहीं फैन किसके लिए प्रोड्यूस हुआ है, ज्यादातर वो नॉर्मल क्लास के लोग अफोर्ड करेंगे, पुअर सेक्शन के लोग उसको अफोर्ड करेंगे, सही है ना। तो ये हुआ, जब हम इस एस्पेक्ट को देखेंगे तो ये कहलाएगा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहलाएगा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी लोग एक किसी भी प्रोडक्शन हाउस में काम करता है तो आपको चार रिसोर्सेज हैं जो लगते हैं, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो लगते हैं। कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसको दिमाग में हटा लो। प्रोडक्शन होता है इन चार वजह से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स। तो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से प्रोडक्शन हुआ, तो जिसने जमीन दिया वो रेंट ले जाएगा, जिसने मेहनत करा वो वेजेस ले जाएगा, जिसने पूंजी लगाया वो इंटरेस्ट ले जाएगा, और जिसने सब सारे रिसोर्सेज को एक साथ लाया वो प्रॉफिट ले जाएगा। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड के लिए रेंट, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रॉफिट। ये है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है। तो किन के लिए गुड्स और सर्विस किन के लिए प्रोड्यूस हुआ है, इसके दो एस्पेक्ट है, इसको दो नजरिए से आप देख सकते हो, क्योंकि उसको इनकम मिलेगा तभी तो वो गुड्स और सर्विस खरीदेगा ना। सो दिस लीड्स टू दिस। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में। आज हम लोगों ने 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया। सेंट्रल प्रॉब्लम 3 है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। देखो इन तीन का नाम डिफरेंट भी है, यू हैव टू फाइंड आउट। एक और नाम से जाना जाता है ये तीनों प्रॉब्लम। व्हाट टू यहाँ पे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को ना प्रॉब्लम्स ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कहा जाता है, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी बोला जाता है, ठीक है। और फिर इन 3 टर्म को इसमें चॉइस ऑफ टेक्निक का प्रोडक्ट, ये जो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक है, और ये प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, और ये प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं।